Hello and welcome to the second episode of the Fan Stand. This is your local fan adda. So if you're into sports, cricket, Formula One, potentially even football, this is the place for you. Because here we discuss sports not as experts, but as fans. So you will get our opinions raw, unfiltered, and just the way they are. We put out our first video yesterday and the response was kind of overwhelming. So, if this is your first time, we would urge you to really check out that video where we break down the entire T20 World Cup. This video, however, we are going to be talking about the first match that India is going to be playing in this World Cup against United States. And I'm joined today by a very close person to me, Puneet Singh Sidhu. Puneet, what's up? Hey guys, how are you? I hope you're doing well. Thank you so much for giving us that overwhelming response for yesterday's video. चलो देर ना करते हुए आज शुरू करते हैं और बात करते हैं इंडिया वर्सेस यूएसए के मैच की। चलो उस्ताद जी, ओवर टू यू। All right. Um, so let's it is a weird part for me because अगर यही कॉन्वर्सेशन अगर न्यूजीलैंड को लेकर या ऑस्ट्रेलिया को लेकर हो वी आर अवेयर ऑफ द टीम एंड एवरीथिंग बट पुनीत जस्ट tell us about the USA lineup. So are there any players that stand out? What can we expect from their playing 11? Honestly, the warm-up match that I saw between New Zealand and USA, it was really a tight one. कि यूएसए ने भाई 200 स्कोर किया, मतलब न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, दे स्कोर 207 and when they scored that run मैंने सोचा कि यार ना यूएसए would probably score around 150. It's going to be an easy win for New Zealand, but USA's batsmen batted really well, or they scored 200 and they just lost by 7 runs. सो कि देखा जाए तो ऑल इन ऑल यूएसए की टीम मेरे को स्ट्रांग लग रही है। और गिवन कि भाई उनके जो बैट्समैन जैसे कि मिलिंद कुमार, मोनोक पटेल जैसे बैटिंग की उन्होंने कल, दे आर गिविंग अस चांसेस कि भाई इंडिया वाली गेम भी ऐसी कोई आसानी वाली गेम नहीं होनी चाहिए। गिवन दैट इवन इन 2024, ठीक है, इंडिया और यूएसए की टाइट गेम थी, ऐसे नहीं था कि लाइक आई नो इट वाज अ लो स्कोरिंग गेम, दे ओनली स्कोर अराउंड 122, बट इंडिया टुक 18.2 ओवर्स टू चेज दैट। गिवन दैट Right. इंडिया का उस दिन अटैकिंग बैट्समैन थे, सब कुछ था, इट टुक टाइम, इट वाज हार्ड फॉर देम बिकॉज यूएसए की टीम इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं है। कि उनके लाइक द गिवन दैट द बैट्समैन एंड द बॉलर्स लाइक अली खान हो गए, सौरभ नेट्रावलकर हो गए, ठीक है, कि उनके जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी अच्छी है। दे ट्राई टू पुट यू अंडर द प्रेशर। Right. But just to put things into context, that match happened in New York, I think. यस, Um, आई थिंक सो, आई बिलीव। yeah. So that match was in New York, where no one knew what to expect from that wicket, and I think it was a little sticky as well, right? रुक के आ Um, रहा था बॉल। so for this match, India ki most of the pitches, the venues where the games are going to be played, the grounds are going to be short, the pitches are going to be flat decks. So do you suppose that US would be playing a 180 sort of a game going forward in this World Cup? और डेफिनेटली जो जैसे इंडिया की ट्रैक्स है, दे मोस्ट ऑफ द गेम्स दैट वी मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल, दे गोना बी हाई स्कोरिंग गेम्स, ठीक है, बट दैट्स व्हाट आई सेइंग कि वही देखा जाए यूएस की टीम केपेबल है। दे शोड अस इन द यस्टरडेज वार्म अप मैच दैट दे कैपेबल ऑफ हिटिंग 200 एंड इवन आई थिंक दे कैन माइट गो इवन 220 इफ Right. नीडेड। एंड उनके पास एक ऐसा प्लेयर है जो आई विल से इज टू वॉच आउट। ही डिडंट परफॉर्म वेल बट लाइक मोहम्मद मोहसिन, होल्ड ही अप इज होल्ड अप होल्ड अप तुम मेरा दूसरा सेक्शन अभी ऑलरेडी खा रहे हो. Let's pace ourselves. ठीक है, ठीक है, ठीक है। All right. But coming back to the topic, Puneet, do you think it is to America's advantage that they already have a lot of players of Indian origin who've already played in the Indian domestic circuit? So does it become easier for them to adapt to these pitches and have a better understanding of how to play in the subcontinent? Definitely, that's what I believe in. कि कि देखा जाए most of the team that USA has, it's mainly Asian origin. ठीक है, वो कई most of players पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं। देखा जाए तो उनके लिए it's going to be easier because they have been exposed to this kind of territory and type of wickets beforehand. And और उनके लिए नया नहीं है T20 format. They have been Right. playing other leagues like in Dubai and stuff. ठीक है, और अब जो उनके यूएसए में भी हो रहा है MLA,
इज इट एमएलए? आई थिंक इट्स दैट। या तो वो उनके सब कुछ हो रहा है, तो आई थिंक इट्स गोना बी इजी फॉर देम। Right. Okay, now taking the conversation in India's direction. So we all know the Indian squad, we all know how strong it is, but this being the first match and not being that critical a match. So what do you expect? Are we gonna see some experiments here as well? Is it gonna be Gautam Gambhir, the coach or the captain going, ye players ko utna game time nahi mila hai, so let us just test them out. What are your thoughts? What could India's playing 11 look like here? See, given that it's the first match of the World Cup and they will possibly want to win that match at a greater margin, I think it's not the correct time for them to do some experiments, because they have to make sure that they make it to the Super 8. और उनको चाहिए कि भाई हमें एक एक सेट मोमेंटम स्टार्ट मिले कि भाई अच्छे रन रेट से जीते और अच्छे एक फॉर्म से साथ अगले मैचेस भी खेले। सो गिवन दैट, मेरे हिसाब से इफ आई वाज अ कोच, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बेस्ट टीम को एक बार उतारूं, गिव देम एक्सपोजर टू द फर्स्ट मैच, इंस्टेड ऑफ कि अपनी एक सेकंड टीम को लेके आऊं कि उनको मैच के चांसेस दूं। आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम लाइन टू डू दैट, कि अपना पहला मैच है, टू विन इट विद अ ग्रेटर मार्जिन। And so for me, if I was to talk about the playing 11, it would look like, yeah, I'll have Ishan Kishan and Abhishek Sharma as an opening pair. Right. I'll number three, it would be either Tilak Verma or Sky, depending upon how the things goes on. ठीक है, वो नंबर थ्री नंबर फोर में अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद I'll bring in शिवम दुबे, then I'll bring in हार्दिक पांड्या। ठीक है, अगर डिपेंड नेक्स्ट आई वांट टू हैव अक्षर पटेल, बट अक्षर पटेल की बैटिंग वो चेंज हो सकती है कि डिपेंडिंग अपॉन, अगर भाई विकेट जल्दी गिर जाता है तो अक्षर पटेल को थोड़ा ऊपर भेज देंगे शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या से। अगर नहीं तो फिर थोड़ा उसको नीचे रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। देन आई विल पॉसिबली ब्रिंग इन हर्षित राणा into the Right. attack. But talking about the wicket as well, as you mentioned, it's flat wicket. It's gonna be, it's gonna be bouncy as well. और ठीक है, स्पिन फ्रेंडली इतनी ज्यादा नहीं मानी जाती वानखेड़े, सो इट्स लाइक इट्स डिसेंट इन टर्म्स ऑफ स्पिन। ठीक है, और हम एंड द बॉल्स गोना स्विंग अर्ली ऑन, सो वी नीड सम फास्ट एंड स्विंग बॉलर्स, तो इसलिए आई विल ब्रिंग इन हर्षित राणा। एंड फॉर द स्पिनर्स आई विल कीप आइदर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, इनमें से एक रखेंगे। सो आई स्टिक विद वरुण चक्रवर्ती इंस्टेड ऑफ कुलदीप। बट फॉर द पेसर्स आई अगेन गो फॉर द वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। ठीक है, इंडिया के मिस्टर कंसिस्टेंट। एंड Right. लास्टली हमारे विकेट टेकर अर्शदीप सिंह, पंजाब किंग्स फॉर एवर। Do you think Rinku Singh finds his spot in this team? तो इन टर्म्स, मेरे को रीजन, द ओनली रीजन आई चोज शिवम दुबे वाज, अगर पेस की जरूरत पड़ी तो, बिकॉज इट्स नॉट एज रियली, बिकॉज यू ऑलरेडी गॉट टू स्पिनर्स, यू गॉट अक्षर पटेल एंड आदर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। ठीक है, पेस के लिए आपके पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह है, और तीसरे आपके पास हार्दिक पांड्या थे। ठीक है, Right. जस्ट इन केस हर्षित राणा तो है ही, चलो अगर अगर चेंज करने के लिए अगर कोई एक जना पिट जाता है तो वी हैव अ चेंज फॉर हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे। तो शिवम दुबे ब्रिंग्स दैट बॉलिंग इनटू द स्पेस। रिंकू सिंह इज जस्ट अ पार्ट टाइम बॉलर, ये अभी शिवम दुबे थोड़ा ऑलराउंडर के नजरिए से देखे जाते हैं, तो इसलिए मेरा शिवम दुबे को लाने का वो मकसद था। But मतलब here's a thought that I have कि अगर आप रिंकू सिंह को टीम में पिक करते हो तो you are not picking Rinku Singh for his bowling abilities, you're essentially picking him for his batting. And in a T20 गेम, लाइक एक आपके ओपनर्स एंड एक आपका जो अल्टीमेट फिनिशर है, लाइक आई फील दीज आर द थ्री प्लेयर्स जिनको आप ज्यादा मूव अराउंड नहीं कर सकते. सो लाइक शिवम दुबे डिड वेल इन दैट फोर्थ T20I अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बट डू यू वांट टू पुट दैट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन हिम के भाई तुम ही हमारे लिए गेम्स फिनिश करोगे एंड वी ट्रस्ट यू, और डू यू वांट टू मेक श्योर के रिंकू जो आपका इनफॉर्म प्लेयर है आप उसको उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करो? तो आई अंडरस्टैंड दैट डेफिनेटली, बट आई से कि शिवम दुबे डज मेक सम सेंस देयर, क्योंकि वो फिनिशिंग रोल में बहुत बार खेल भी चुके हैं। देर फॉर चेन्नई सुपर किंग्स हो गए, फॉर इंडिया के लिए पहले भी हो गए। और देखा जाए तो शिवम दुबे ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ लक टू इंडियन टीम एज वेल, मोस्ट ऑफ द गेम्स दैट ही हैज प्लेड ही हैज अ ग्रेट विनिंग परसेंटेज एज वेल। राइट. तो थोड़ा लक के फॉर्मेट से भी चल के देखे तो शिवम दुबे का बढ़िया रहेगा। बट आई हैव वन मोर पॉइंट. एंड इधर उस्ताद तू जो मर्जी बोल, शिवम दुबे कैन नॉट बीट रिंकू सिंह, एंड दैट इज अरे हिज चलो, फील्डिंग.
चलो मैं मान लिया रिंकू सिंह की फील्डिंग अच्छी, वो तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जरूरत पड़ी तो उसको बाहर निकाल देंगे, रिंकू सिंह बेड़ा को अंदर ले बेड़ा आएंगे। गर्क हुआ पड़ा है क्रिकेट का, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है ये सब्स्टिट्यूट सिस्टम से। आई डोंट नो, आई एम प्रॉब्ली जस्ट अ प्योरिस्ट इन दैट सेंस कि उन्होंने अगर बैटिंग करनी है तो फील्डिंग भी करनी पड़ेगी, अगर बॉलें डालनी है तो भी फील्डिंग करनी पड़ेगी। अरे गली क्रिकेट थोड़ी है अभी ये थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुके हैं ये लोग, ये हमारे लौंडे, तो इनको कुछ भी कर सकते हैं। All right. So moving on to the next thing, let's talk about the pitch and the toss. So, what do you think the pitch is gonna look like? Like we've discussed about it, but still, what do you अबे think? आपने आपने हमसे यूएसए की पूछी नहीं, उनकी उनकी पे प्लेइंग 11 नहीं जाननी। अरे यूएसए के, चलो मेरे को लगा हमने कवर कर लिया है, बट चलो बताओ बताओ। यार तो मैंने अपनी रिसर्च की है, देखो ऐसे तैसे तो मेरे को मत छोड़ो। यूएसए की प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से ही होनी चाहिए। दे गॉट आंद्रेस गॉस इनटू फॉर 2024 वर्ल्ड कप, ही वाज वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर्स फॉर यूएसए। देखा Right. जाए, और इवन रीसेंट फॉर्म इट्स बीन और प्रीटी डिसेंट। हाँ। माना कि वो न्यूजीलैंड के गेम में जीरो पे आउट हो गए, बट आई थिंक ही इज गॉट अ लॉट ऑफ एबिलिटी इन हिम। फिर हमारा आता है सतीजा मुखमाला, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम रॉन्ग, माफ कीजिए। ठीक है, फिर हम जाएंगे नंबर 3 पे, जो इनके बैट्समैन है शायाम जहांगीर। ये काफी प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, शोन हिज क्लास इन वेरियस फॉर्मेट्स थ्रू आउट फॉर यूएसए, तो मेरे को इन पे बहुत ज्यादा है कि भरोसा कर लेंगे। नो, देन नंबर 4 इज नो अदर देन मोनाक पटेल, जो इनके कैप्टन है भाई। Right. क्या ताबड़तोड़ बैट्समैन है, अगर इनका बैट चल जाए तो ये रन अच्छे मारेंगे। सिमिलरली एज नंबर 5 आई विल गो फॉर मिलिंद कुमार, इनकी भी बैटिंग अच्छी जा रही है, और उनके देयर इन फॉर्म एज वेल। नेक्स्ट आई ट्राई टू ब्रिंग समवन दैट कि थोड़ा सेंसिबल भी खेलता है इनकी टीम में, अगर इन टर्म्स ऑफ कोलैप्स हैपेंस, दैट्स संजय कृष्णमूर्ति। एंड इवन ब्रिंग सम स्पिन इनटू कॉन्टेक्स्ट एज वेल, कि भाई स्पिन बॉलिंग भी कर सकता है आने आने अगर जरूरत पड़े, ठीक है, Right. कभी कभार अपने गेम को स्लो करने के लिए। बट देन मेरा अगला ऑप्शन था कि मैं शुभम रंजाने से जाऊं, उनकी बैटिंग भी अच्छी रहती है, प्लस ये दे ब्रिंग सम बॉलिंग इनटू ऑप्शन एज वेल। फिर नन अदर देन आई गो विद मोहम्मद मोहसिन। भाई अगर इनकी आपने अगर बैटिंग देखी हो भाई, दुबई की लीग, वो जो T20 लीग होती है, उसमें इनने भाई 304 300 350 स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग की हुई है। अगर इनका बैट चल जाए तो ये भी आपको अभिषेक शर्मा ऐसे छक्के दिखा सकते हैं। Okay. ठीक है, फिर द नेक्स्ट आई द फॉर द बॉलर्स आई हैव अली खान, जो द वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स दैट यूएसए हैज। एंड आई गॉट सौरभ नेट्रावलकर। उनकी चलो वो तो विद एक्सपीरियंस और एकल डेटाबेस वाले काम भी करते हैं, सब पता नहीं कहाँ क्या क्या करते हैं, वो आईटी भी काम किया है, Bro, this क्रिकेट this भी खेल guy रहे हैं। this guy is living the dream. Like what I know about his story, this हम्म। guy used to play along with the likes of Ajinkya Rahane. हाँ। Didn't make it to the Indian team, but he हम्म। was he was a good student, did well in his studies. So हम्म। he studied, did his engineering, got a हम्म। job with Oracle. तो बंदा वहाँ हम्म। ग्रीन कार्ड पे यूएस में रह रहा है, हम्म। आईटी में पैसा छाप रहा है, एंड ही स्टिल गेट्स टू प्ले क्रिकेट। मतलब दैट्स दैट्स द ड्रीम, देखो, राइट? ये दैट्स ड्रीम लाइफ जो जी रहा है, कि अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, आईटी में काम कर रहा हूँ, मेरा हो कि बस भगवान करे मेरे को उसी रास्ते में पहुंचा दे, हम भी क्रिकेट खेले, फिर हम भी नेक्स्ट सौरभ नेट्रावलकर बन जाएंगे, कि ब्रो, आई आईटी में आई काम थिंक करते करते साथ में क्रिकेट चल रही है। आई थिंक जो जो अपनी डिस्कशन हुई थी अबाउट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक दैट वाज द रॉन्ग कॉल। तुम हम्म। कनाडा में होते पक्का, मतलब तुम वो कनाडा की टीम कनाडा में खेल रहे मैं होते। आज ही मैं देख रहा था, मैं ना रीले देख रहा था, मेरे को गाया भगवान, मैंने ऑस्ट्रेलिया क्यों आया, कनाडा चला जाता, कनाडा में थोड़ा इजी हो जाता क्रिकेट खेलना। ठीक है, कि यहाँ पे इतने लोग नहीं है, ठीक है, और स्पेशली ठंड पड़ती है, कौन खेलना चाहता है। मैं ट्राई करता कि कनाडा में इजीली बन सकते थे क्रिकेटर हम इतने, कि यहाँ से अच्छा तो। ब्रो, यू वुड हैव बीन एन इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑलरेडी, लाइक इवन आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता था। और चलो वो छोड़ो, आईपीएल आईपीएल तो चलो नेक्स्ट बात है, अगर एक बार क्रिकेट जर्सी पहनने को मिल जाती ना किसी दूसरी कंट्री की, ऐसा होता कि चलो एटलीस्ट अपना नाम तो कर लिया ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के। हाँ। चलो, नो नो You मूव। still got a friend, you can give him a call. डेफिनेटली आई लुक इनटू इट। अभी अपना इधर का देखते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं। चलो फिर लास्टली जो नंबर 11 होगा हमारा यूएसए का, वो होगा शैडली। जो उनका लास्ट नेम है, आई कांट प्रोनाउंस हिज लास्ट नेम यार, थोड़ा डच उसका नेम है। सो दैट्स व्हाट आई विल गो फॉर, ही इज अ ग्रेट बॉलर एज वेल फॉर Right. यूएसए, मीडियम फास्ट बॉलर। Okay. So yeah, I mean, let's which I jumped the gun pehle. Let's talk about the pitch and the toss. So, what is the pitch gonna look like? What is the outfield gonna look like? Toss जीते तो क्या किया जाए?
सो मेरे अकॉर्डिंगली वानखेड़े वैसे इट्स अ शॉर्ट स्टेडियम, ठीक है, रन तो पड़ेंगे ही, इनको Right. पता है। Hmm. ठीक है, सो इट्स अ बैटिंग फ्रेंडली सर्विस, इट्स फ्लैट ट्रैक और क्विक ट्रैक है, ठीक है, वो बाउंस करती है बॉल, अच्छी बैट पे आती है। तो पर ये है कि इफ यू विन द टॉस, आई विल नॉर्मली वुड लाइक टू चेस इफ इट आई वाज इन द पोजीशन, बिकॉज क्या होता है कि एंड में वानखेड़े में ड्यू आनी शुरू हो जाएगी, तो दैट्स गोना बी हार्ड फॉर द बॉलर्स। बट गिवन दैट ओनली कि अगर आपको पता है कि आप 250 रन से कम खाओगे भाई, 200 250 से कम खा लोगे Right. वानखेड़े जैसे ग्राउंड में, तो अगर हाँ. आपने खाई 250 लिए फर्स्ट इनिंग्स में, आपने इफ यू गिव 250, इफ यू कंसीड 250 रन और मोर, तो फिर तो चेज करने का क्या ही फायदा, फिर तो बहुत मुश्किल है चेज करना, दैट्स वन इन लाइक 100 केसेस सिनेरियो कि तुम चेज कर पाओगे। Right. बट अगर आप जैसे अब पहले बॉलिंग करते हो, आपको गुड स्विंग मिलेगी अर्ली ऑन, इट्स गोना बी इजी बिकॉज इट्स नॉट गोना बी दैट ड्यू फैक्टर नहीं आएगा आपका, तो आप अर्ली विकेट्स भी ले सकते हो। फिर उसके बाद ड्यू आ जाएगी तो इट्स गोना बी हार्डर फॉर द पेस बॉलर्स टू कम इन। तो दैट्स व्हाट माय प्रेडिक्शन इज कि भाई अब पहले चेज करो। बट इफ आई वाज इंडिया तो भाई मेरे को अपनी बैटिंग लाइन पे इतना भरोसा है, फिर तो मैं कहूंगा चलो भाई टॉस जीते हम बैटिंग करते हैं, 250 Right. मारेंगे तो भी ले जाएंगे हम। I think I actually relate to that thought कि if I think from the perspective of India, अगर आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ आपकी बैटिंग में है एंड बैटिंग फर्स्ट, अगर आप सीधा जाते ही आप 250 जितने रन अगर मार देते हो, तो यू नो दैट अगेंस्ट अ टीम लाइक यूएस आपकी बॉलिंग अगर डिसेंट भी है, यू वुड स्टिल बी एबल टू रिस्ट्रिक्ट द मैक्स टू मैक्स टू 180 190 and take it easy. So in my view, I think India should go and play according to their strengths. But again, you never know with Lord Gambhir and what he's gonna churn out on on the match day. नहीं, चलो फिर देखा जाए, मेरे हिसाब से व्हाट वी थिंकिंग, इट्स गोना प्रोबब्ली दैट्स व्हाट गोना हैपन, तो होपिंग फॉर द बेस्ट इन दैट टर्म्स Right, भाई। पर बाकी विनिंग परसेंटेज तो देखो देखी जाए तो मेरे को लग रही है कि इट्स गोना बी 98% इंडिया एंड 2% यूएसए, right. यू नो। आई होप यूएसए कैन प्रूव मी रॉन्ग एंड कैन स्केल इट अप टू लाइक 60-40 और 70-30, आई विल स्टिल बी हैप्पी टू Right. सी दैट। अभी वर्ल्ड कप में नहीं चाहिए हमको, वार्म अप अरे में थोड़ा जितने झटके यार, मिलने चाहिए तो मिल गए, ठीक है, और थोड़ा नहीं ले थोड़ा सकते। थोड़ा थोड़ा ड्रामा तो चाहिए ना यार, थोड़ा इफ यू आर इंडियन, इफ यू आर ट्रू इंडियन, यू नीड सम स्पाइस टू इट। नहीं नहीं, मेरे को जितना ड्रामा और जितना स्पाइस है मुझे पाकिस्तान वर्सेस यूएस में चाहिए। इधर आई चलो वांट अ ठीक, बोरिंग गेम, इंडिया वन साइडेड जीते बस, खत्म है। बट आई चलो आई फिर थिंक ठीक है। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड पुट इट एट 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। हम्म 10% बिकॉज with a team like US, like किसी को कोई expectation नहीं है, so like they don't carry the pressure of the expectations the way the India team does. So uh, I think US is gonna be playing pretty stress free. हम्म आई um, डेफिनेटली एग्री ऑन दैट टर्म्स कि देखा जाए तो यूएस वो स्ट्रेस फ्री खेलेंगे, एंड आई होप दैट वर्क्स आउट इन द फेवर, बिकॉज यार कि आपको पता ही है कि ना लोगों को कोई इतना स्ट्रेस नहीं है, आप अपना नेचुरल गेम खेलो, बस एंजॉय करो, एंड दैट right, समटाइम्स इवन यील्ड्स गुड बेटर आउटकम्स फॉर यू, सो हु नोस। right. All right, so talking about the stats, India and US have only played once against each other. That was in 2024. And Puneet, what did you say the score of that match was? It was 122. I think USA scored 122 and India had to chase 123. And they chased it in 18.3 overs or 18.2 overs, I reckon. And dekha jaye to that's what it was, just a run a ball that they had Right, to score. And it still right, took them a long time in order to achieve that score. right. So dekha jaye the USA tried that, but India won by 7 wickets. Wicket nahi di unhone, they took it slowly, but they could have tried 10 minutes even faster. So maybe just a case of India playing very conservative cricket and playing it safe. कि formality है, match खत्म करना है. The run rate doesn't matter a lot to us. और तो उस टाइम पे थोड़ा विराट कोहली और थे हमारे वहां पे, तो उनको था कि चले यार आराम से खेलते हैं, अभी रीस है, अब तो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर हैं, इतना कम तुम स्कोर है हम तो मारेंगे। बेटा, तुम पाकिस्तान को इस चैनल पे कुछ भी बोल लो, कुछ नहीं होगा। हम्म तुम कोहली और रोहित पर तुम तंज मत कसो। अरे थोड़ा 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 फिर कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी शुरू करके थोड़े व्यूज भी तो आएंगे। थैंक यू राखी सावंत, and thank you Deepak Kalal for teaching us that controversy sells. All right. So let's talk about the players to watch out for in this game. So you give me one Indian batsman, one US batsman, and one Indian bowler and one American bowler. ओके, इंडियन बैट्समैन आई विल से अभिषेक शर्मा। Right. यूएसए बैट्समैन आई विल से मोनाक पटेल द कैप्टन।
Right. कि वो लंबे हिटिंग कर सकते हैं। फॉर बॉलर्स आई गो विद नन अदर देन अर्शदीप सिंह, हमारे सुपरस्टार। वो Yes, we लेंगे are ऐसे, biased and we own it. एंड वी ओन इट, ए इन स्विंगर डालेंगे, बोल्ड करेंगे, देखना। Right. और यूएसए का बॉलर आई से प्रॉब्ली लुक आउट फॉर सौरभ। खेल Right. चुके हैं भाई इंडिया इंडियन सर्किट में, उन्हें पता है क्या होता है। Right. और Um, है भी, आई थिंक ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र एज वेल, सो ही नोज हाउ थिंग्स वर्क इन मानखेड़े एज वेल। तो right. From what I heard, he was also like he's been in India for quite some time, and he's been practicing in Shivaji Park. अरे होना ही है कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है So ना आईटी में, और एक्ल में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ना मिले तो फिर क्या ही चीज है। that's the life, bro. Acha, for me, the players to watch out for, I think in Indian batting, I think for me it's gonna be the captain Sky. I think he's really gonna take this match away. He's gonna be in control of the batting through and through. Um, from the American side, I think in batting, I'm also going to go with the captain Patel Saab. Then, when it comes to the bowling, for India's bowling, I think I am expecting another 5 wicket haul and potentially from Varun Chakravarti if he plays this match. But I don't know. Do you want to play your mystery spinner in in a game अरे अब that's इतनी मिस्त्री नहीं रही है यार, अब तो ये इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके हर एंगल से आपका हाथ वो देख रहे हैं। ठीक है, इतनी मिस्ट्री नहीं रही, वो मिस्ट्री चली गई, वो उनके टाइम पे होती थी। सईद अजमल, मुरलीधरन के टाइम पे इतने जब कैमरास नहीं होते थे, अब इतने कैमरास, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, अब कोई मिस्ट्री नहीं है। right? So Varun Chakravarti, the bowler for me. And from the US side, there is this one player जिसके बारे में I've heard a lot. I think it is Harmeet Singh. If I'm मैंने um, तो उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में भी नहीं रखा। I don't know, man. I've got hopes because I've seen him in IPL. I think he used to be in Mumbai or Chennai, I think. And he played a अच्छा। few games. So I don't know. And like he also gave a few interviews, and he seems to be coming to this tournament with a lot of heart. So I don't know. For me, he's that one player you need to watch out for. चलो, साउंड्स गुड। All right. ठीक है, And इट्स बेटर टू हैव कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, फिर पता लगे कौन सही था कौन गलत था। हाँ मतलब obviously we're not gonna remember all the 11 names of the American players, but ये हर मैच में अगर दो दो भी ले आते हैं तो आई यार, थिंक ग्रेजुअली यार थोड़े देखो प्लेयर्स याद देखो, हो जाएंगे। गाइस गाइस याद देखो, मेरे को सब याद थे, ठीक है, मैं यार अपनी रिहर्सल करके आया था, अपना होमवर्क करके आया था। अब मेरे को ना थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए आप। उस्ताद तुमने अभी तक मुझे इटली के 3 प्लेयर्स के नाम नहीं दिए, मैंने इतनी छाती ठोक अरे के यार पहली वीडियो में मैं, बोला था। अब अभी ऐसे नहीं हो, थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे याद नहीं आएंगे। वो इतना पता है, ऑसी थे, तीन तो ऑसी थे, उसने एक तो खिलाया नहीं, जो बर्न्स था उनका। चलो कोई नहीं, उस्ताद जोबन को खिलाया नहीं। उस्ताद को टाइम दे देते हैं पर्चियां बनाने के लिए, कोई हाँ दिक्कत नहीं नहीं, पर्ची ठीक है, ठीक है। नहीं। All right. So next up is the power play prediction. So if assuming India goes to bat first, what do you think they're gonna score in the power play? I'm at least looking at 80, around 80 score in a power play, Right. 70 to 80. I think for me, I would be sitting in that 65 to 75 wala zone. Like they would be going aggressive, but not as aggressive, considering it's the first match. Hmm. And if US goes to bat first, what do you think their power play score is gonna look like against the They Indian bowling attack? see, given the pressure they will have in terms of कि अगर इंडिया को उनको हराना चाहते हैं, ठीक है, they know that they need to score big, so they'll probably go all in for the power play, and they will try to score at least 60 to 65 runs at least. Right, That's that they need in that power play to set up a momentum for them. right. And any wickets as well? Like they have to make sure that they don't lose much wickets. So I'll say give it, just keep a max to 2 wickets. But Keep a cap of 2 wickets. what is your prediction? How My many runs prediction for is how कि many भाई wickets? 60 runs for two wickets. Okay. I think that yeah, I think even I'm gonna stick with two. No, I'm gonna make it 3 wickets for Hmm. 45 runs. So 45 for three USA ka You do power play prediction. ठीक है. You're making a big call. ठीक Wait, है. I'm actually gonna note this down. So when we do the review, we can ठीक है. actually take this into consideration.
So Okay. I said 45 for 3 US. Yeah, I said 60 for two. Okay. 60 for 2 says Puneet. भाई भाई यूएसए वालों मेरी बात सुनो ठीक है लिसन टू मी यू एंड्रेस गॉस एंड सतीजा मुकमला you guys have to make sure that you make some runs मेरा नाम नहीं नीचे जानी चाहिए ओ देखेंगे देखेंगे। ऑलराइट अब मैं भूल गया मैंने इंडिया को कितना प्रिडिक्शन दिया था आप दोनों ने you said कितना कितना 60 दिया था? 60 you said 65 to 75 Okay, then I'm that gonna bracket put it at 75 for one. okay and I was saying around 70 to 80 for 2 wickets no I'll say 1 wicket as well. Okay, 80 for Hmm. one says Puneet. Okay, Hmm. so I've noted it down. Just there's the proof. तो अब ये चेंज नहीं हो सकता है. ठीक है डन है All right. Odds to win. I think we've already discussed this. I think you said 95 to 5, I said 98 to 2. 98 to 2, and I said 90 to 10. Hmm. Um, so that that was all we had to discuss about this match. But any chances of an upset? Any player or anything that we're really hyped up for or really excited for that may not really work out tomorrow? भाई मैं सोच रहा हूँ हमारे मोहम्मद मोहसिन मैं उनको उतना ज्यादा रूट कर रहा हूँ ना मेरे को है कि अच्छे रन मारेंगे भाई पूरा अच्छा दिखाएंगे मैं और बॉलिंग में भी आई टेल यू गाइस इधर उस्ताद की स्कीम क्या चल रही है ही नोज कि अगर अभिषेक की बात कर दी या किसी और अर्शदीप की बात कर दी और वो फेल हो गए सबको एकदम से ऐसे पता रहेगा। मैं ऐसे प्लेयर की बात करता हूँ जिसका किसी को पता ही नहीं है तो वो सेंचुरी मार जाए तो ये बता देगा वो कुछ भी ना करे तो किसी को याद ही नहीं रहेगा। सी यू हैव टू प्ले द डिप्लोमेट गेम यू नो कि चलाना पड़ता है दिमाग कभी कभार इसीलिए तो हम क्रिकेट में पीछे रह गए हमारा दिमाग ऐसे नहीं चला है। So, all right, that was the video, guys. We're gonna see you day after tomorrow to do a review of this exact same match, India versus US. We're gonna talk about the high points, the low points, the performances we liked, and a whole lot of other stuff as fans, not experts. Preet, any message to the audience before you leave? नहीं आपने कह दिया बहुत है All right. So that was the video, guys. Thank you so much for your time. And if you like this video, please don't forget to hit that thumbs up button, comment your thoughts, and if you've got any feedback for us, please share it with us. Share this video with your friends and subscribe to the Fan Stand. Thank you very सब्सक्राइब much. गाइस सब्सक्राइब